Hello. Good evening, all of you. Times change, friendship doesn't. Every day it multiplies. So happy Friendship Day to all my friends, my audience, and Deepaji who's with us. So let me share the experiences which I had in my past episodes. We started against all odds. It's an episode to introduce you to all the people who are actually working against all odds. Caste, creed, kuch bhi maine nahi rakhta. They are just moving, and on their own, with their own willpower. So ऐसे ही हम आपके पास स्टोरीज लाए थे. सबसे पहले हमारी स्टोरी थी अविनाश जी. उन्होंने जो अपने लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ की है, वो देख के हम सब खुश हो गए. मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स आए कि his story was really heart touching and motivating. Then we had Pinky ji last Sunday. She has been motivating everybody since so many years now, and उनके सब काम को सराहा रहे हैं. तो उसी को देखते हुए हम आपके पास ऐसी स्टोरीज लाते हैं जो बोलते हैं ना, सनसनीखेज खबर नहीं होती, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसको सुन के शायद वी कैन चेंज फ्यू लाइफ्स, वी कैन चेंज फ्यू थॉट्स जो नॉर्मली हम लोग एक ब्लॉकेज अपने दिमाग में रखते हैं. So, my name is Megha B. Pitwa. I'm a spiritual advisor, a life coach, a numerologist, tarot card reader, a graphologist. I'm also into education, and that's my passion. So, I'm also your host and host for this session against all odds. And we are introducing Deepa Katrodia ji. Fitness guru bolungi ab to main unko. The way she has changed herself. Before I start, let me quote her words. Every day is a good day when you run. So इनकी जो जिंदगी है वो रन से जुड़ी हुई है, बट उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं जो आज आप लोग सुनेंगे तो यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, बट हार नहीं मानने की और आगे बढ़ते रहने का. So welcome Deepa Katrodia ji on our show. I would like to, salute you the way you have transformed. And मैं आपसे सुनना चाहूंगी आपकी जर्नी का स्टार्टिंग जहां से आपने बोलते हैं ना आपका पहले. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर चाइल्डहुड लाइफस्टाइल, जैसे कि लोगों को पता चले आप क्या थे, एंड देन आफ्टर मैरिज आपने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया आपके हस्बैंड के थ्रू या अदर मोटिवेशंस. Thank you, Deepa. Please show some light. First of all, thank you, Megha, Ramakant, and Dinesh for considering me as an inspiration. You guys are doing very good thing in this pandemic situation. There are so many dull moments in between 2-3 months, but you guys are doing great job. So clap for your series is against odds, all this. And about me, I'm a simple next door girl kind of thing, and I was born and brought in city of Indore. Basically, I'm from a Gujarati family, and I was in my young age, I was very girlish kind of, यानी मुझे सजना संवरना और शीशे के सामने रहना, and sports was never in my radar. And okay. I still remember I refused to my dad कि dad मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, because my dad likes walk every Sunday, so he takes me for a Sunday को कहीं चलो आज बेटा बाहर जाते हैं. So then no पापा मैं आपके साथ नहीं आऊंगी because आप चला के मुझे लेके जाते हो. So I was that kind of girl कि मैं अपनी life में I still remember I never walk a single kilometer in my life. So ऐसे ही बस. और since I'm from Indore, so I'm a totally foodie living kind of my life, and बस ऐसे ही मेरा पूरा life young stage was like this only. I was very girlish. वो बस Sunday यानी शीशे के सामने सजना संवरना और सिर्फ यही था. और चलना पापा के साथ ये वो. I was thinking घर से नीचे जाएंगे तो मुझे एक व्हीकल पे ही आप लेके जाओ, स्कूटर, बाइक, रिक्शा, मैं चलूंगी नहीं, ऐसा मेरा उनके साथ डील होता था.
पापा की परी हो आप मतलब। So this kind of thing. तो उनको ऐसा बहुत मैंने यहाँ से देखा था कि he likes to walk. तो मैं उनके साथ ऐसा मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, मैं मम्मी के साथ जाती हूँ ऑटो में कहीं पे भी, तो ये मेरा था। फिर after marriage moved to Mumbai, city of dreams. And Mumbai आने के बाद my life was little bit changed. I have some responsibilities, joint family, but Pradeep was completely outdoor person. He likes climbing, trekking, hiking, and everything. So I started walking, morning walk with him for to spend some time with him. Started slowly, slowly. We used to walk in a national park. So then we'll start something. He likes outdoor. मतलब सुबह कुछ भी he wanted to go out and do some cycling, running. And before marriage, he very hardcore climber and a trekker. He used to go for Himalayas, Gangotri trek, and every Saturday, मतलब घर वाले मुझे ऐसा बताते थे कि फ्राइडे नाइट से प्रदीप जाता था तो सीधा संडे रात को हमें दिखता था। इस 2.5 day प्रदीप को हम नहीं देखते थे घर पर। So he was that kind of hardcore climber and trekker. फिर after marriage एक दिन हमें एक फ्रेंड मिला जो प्रदीप का काफी क्लोज फ्रेंड था। ही सेड प्रदीप अभी तेरा शादी हो गया है। ही टीजिंग हिम कि अभी तेरा शादी हो गया है, तू सारे इक्विपमेंट बेच दे और अभी तू क्लाइंबिंग ट्रैकिंग नहीं करेगा और तू अभी शादी हो गया है यानी तू खत्म हो गया। सो ही सेड बोलता है बाद में ही सेड कि मैं तुझे एक और एडवाइस देता हूँ, या तू अपनी वाइफ को ये सब सिखा दे या तू आज सारे तेरे इक्विपमेंट लाइक कैराबिनर, रोप्स और ये शूज और बोला आज तू सब डोनेट कर दे, अब तू शादी किया है अब ये सब तू नहीं कर पाएगा। गॉड एंड प्रदीप शूट कर दिया उनको कि अभी चेंज कर लो अपना लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ द मैरिज। वो क्लाइंबिंग के फ्रेंड तभी वो टाइम ऐसा ही था कि एक दूसरे को बहुत तेरा शादी हो गया यानी तू गया अभी क्लाइंबिंग से, ट्रैकिंग से। सो देन हम लोग ने यही सोचा कि शादी किया है तो इट नॉट मीन के he can't go anywhere anything else. So he started training me in that situation. तो मुझे तभी यही लगा प्रदीप ने वो एक्सेप्ट कर लिया, अगर मुझे बाहर जाना है तो मेरी वाइफ को मुझे ये सब सिखाना होगा। Because and he took me to the sports journey and he pushed me a lot. I know still remember first time वो मुझे सह्याद्री के छोटे छोटे ट्रैक्स पर लेके जाता था लाइक राजमाची, माउली। तो हमने ये छोटे छोटे ट्रैक्स किए। फ्यू ट्रैक्स वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लाइक मैं पूछती अभी तू सच में बता कितना ऊपर है, अभी फाइनली तू बता दे। हर रास्ते में बोलता आ गया बस आ गया बस आ गया। मतलब धीरे 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 वो आपको चढ़ाते गए, बनाते गए, बताते गए। बस मैंने एक दिन इतना मैंने कहा अब भी तू बता दे कि अभी कितना ऊपर है। तो इस तरह हमने छोटे छोटे ट्रैक शुरू किए, राजमाची, मावली। एंड आई वाज इनटू द फिटनेस एंड दिस जर्नी जस्ट टू स्पेंड टाइम विथ हिम। एंड मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं उसके साथ रहूं, तो उसी के साथ मेरा टाइम भी स्पेंड होगा व्हाट एवर ही लाइक्स। तो वैसे वैसे हमने सारा जर्नी शुरू किया। ओके। आफ्टर मैरिज फिर आपकी शादी हो गई तो मतलब प्रदीप जी बिकेम योर बेटर हाफ और उन्होंने भी आपको एक बेटर हाफ बना लिया और यू स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो पहले मैं वहीं पर रोक के ना आई वुड लाइक प्रदीप जी टू टॉक समथिंग मोर अबाउट यू कि उनको कितने एफर्ट्स लगे आपको ऐसा बनाने के लिए जो लड़की मतलब बोलते ना पापा की परी, जिसको कोई व्हीकल चाहिए, चलने का बिल्कुल शौक नहीं और उसको धीरे 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 करके एक स्टेप पे स्टेप आगे बढ़ाते गए। तो लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रदीप जी जो आपके हस्बैंड हैं। मेरे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि कैसे इतना बोलते ना लथार्जिक बोलूं या क्या बोलूं आई डोंट नो, या अ गर्ल हैज बिकम अ टॉमबॉय, राइट? So Pradeep ji, can we have you online? And I would like you to share your experiences with Deepa ji कि आपने उनको क्या efforts डाल के ऐसा बना दिए कि आज वो रुक ही नहीं रही है। Running never stops for her. Sir, can we have you online? Unmute and अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सर। तो प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हमारे को दीपा जी की एक्चुअल फैक्ट्स बताएंगे, जो एज अ बेटर हाफ वो ही बता सकते हैं कि उनको कितना कंफर्ट था कि कितनी डिफिकल्टीज हुई। हाय प्रदीप जी, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम गुड टू सी यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू टू सर। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू सेम टू यू। थैंक यू सर। तो आप सुन तो रहे होंगे हमको
तो हाँ। जो दीपा जी ने बताया शादी के बाद जो आपने उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस कर दिए, या आपको ये डर था कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से आपने उनको उनको ऐसा बनाया, सच बात हम जानना चाहते हैं आपसे। तो फर्स्ट ऐसे ही था कि जो दीपा ने अभी एक्सप्लेन किया कि अबाउट थिंग्स के उनका लाइफस्टाइल इन पास्ट में कैसा था, जैसे उन्होंने बताया कि फादर के साथ कभी नहीं जाते थे, ये सब बताया। बट यहाँ पर आने के बाद काफी लाइफस्टाइल मेरी काफी डिफरेंट थी, और मैंने उनको बताया कि हम स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट पहले वॉक से स्टार्ट करते हैं। वॉक जर्नी हम लोग ने स्टार्ट की, और फिर थोड़ा टाइम हमको गया, हम साथ में वॉक के साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते थे। और फिर मैंने बताया यही अगर हमको करना है तो यू नो ये मेरा सब ड्रीम है, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग वगैरह, तो ये मेरा ड्रीम मुझे परस्यू करने में उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कभी मुझे ये नहीं बताया कि अरे यार तुम ये सब छोड़ दो या जो भी मत करो, अभी हमारी लाइफ स्टाइल चेंज है। बट शी ऑलवेज सपोर्ट मी के परस्यू योर ड्रीम एंड एवरीथिंग। सो काफी मुझे सपोर्ट रहा उसके ऑन उनके बेटर मतलब बनने के लिए भी, कि चलो उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। So you complimented each other. You started complimenting each other, right? So काफी मुझे उसका भी सपोर्ट रहा कि हाँ चलो अभी एवरी संडे जाना है। तो क्लाइंब ट्रैक के लिए पहले मैं सोलो जाता था, और Okay. फिर तभी वो उसने भी स्टार्ट किया कि नहीं चलो अभी मैं भी स्टार्ट करता हूँ, और हमारे Support साथ या सपोर्ट करने में आना शुरू किया। और फिर तभी हम लोग फैमिली से भी जॉइंट फैमिली, तो हम लोग टाइम मैनेज करके सब वर्क होम का घर का भी सब काम मैनेज करने के बाद हम सब वर्कआउट करते थे या जो भी आउटडोर एक्टिविटीज करते थे। सो शी इज ऑलवेज एनकरेजिंग मी एंड सपोर्ट मी टू डू ऑल द आउटडोर एक्टिविटीज। उसके साथ ही जब भी हमारी जर्नी सब स्टार्ट हुई तभी मैंने फर्स्ट आने के बाद पूछा था उसको कि आपको स्विमिंग आती है। सो एक चीज पहले पूछना चाहूंगी, कितने साल हो गए आपकी शादी को, पहले वो बताइए। You guess, Vega. I don't want to guess because मुझे लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है अभी अभी यंग कपल्स मेरे सामने बैठे हैं। 15 years हो गए। 15 years यार। Yeah. Hats off. पर लग नहीं रहा, सच्ची में नहीं लग रहा। ऑडियंस भी यही मानेंगे कि लग नहीं रहा आप लोग ने कैसे मेंटेन कर रखा है, एंड वही राज है आपकी ग्लो का, मेंटेनेंस। डिसिप्लिन लाइफ, नथिंग एल्स। यस, दैट डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ऑडियंस को थोड़ा बताइए सर, आप डिसिप्लिन कैसे रखते हैं? और जस्ट हम लोग सिंपल डिसिप्लिन है हमारे लाइफ में। कहीं पर भी जाते हैं सब, हम भी फैमिली फंक्शंस होते हैं, सब जगह जाना है आना है। बट एक मॉर्निंग रूटीन शेड्यूल फिक्स किया हुआ है जिसमें हमको वर्कआउट्स के लिए जो भी हमने एक आवर्स फिक्स रखे हैं, 1.5 hour और 1 hour, और वेदर वी आर गेटिंग एट 30 minutes, वी आर डूइंग 30 minutes वर्कआउट। बट वी आर डिसिप्लिन लाइफ काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एथलीट एंड एडवेंचर लाइफ और समथिंग। इवन इन द नॉर्मल लाइफ अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन है तो आप काफी अच्छे अपने आप को पूरा लाइफ मेंटेन कर पाते हैं, सब चीज बैलेंस कर सकते हैं, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब आप बैलेंस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जस्ट डिसिप्लिन लाइफ। एग्जैक्टली, एग्रीड सर। तो स्विमिंग वाली बात मैंने काट दी थी, तो वो प्लीज कंटिन्यू करिए बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी वो काफी डिफरेंट था कि मैंने बताया था कि उसको स्विमिंग इज अ लाइफ का एक बोट है, वो कहीं पर भी हमको वो यूजफुल होगा। करेक्ट। सो मैंने उसको बोला था कि तू कहीं पर भी जा, तुझे स्विमिंग आना चाहिए। ओके। आफ्टर मैरिज इन 20 at the age of 26 she learned the swimming. Oh wow. So that's the biggest thing. मतलब कोई भी एक ये एज पर जाने के बाद स्विमिंग सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है और ये होता है, बट शी वेरी एंथू टू लर्न स्विम, और काफी उसने रिस्क लेके, वो डूबना है मरना है वो सब डर के साथ फाइट करके उसने स्विमिंग लर्न किया, और काफी मुझे वो हेल्पफुल रहा। और मतलब उसको भी आज अभी भी वो कहीं पर भी जाती है तो शी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे स्विमिंग तो आता है, अभी मैं मरूंगी तो नहीं। But hats off दीपा जी, at the age of 26 learning swimming, मतलब लोग पानी में उतरने से डरेंगे ऐसे टाइम पे, अगर वो मोटिवेशन नहीं होगा तो
Pradeep ji has really been a good support to you, yaar. Very good. और क्या बताना चाहेंगे प्रदीप जी, और कुछ इम्पोर्टेंट बात, सो दैट फिर हम जस्ट मैं इतना बताऊंगा कि दीपा वो काफी मुझे भी सपोर्टिव रही है, एंड एक उसका स्पेशल ये है कि वो जब भी कोई भी चीज डिसाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसको कुकिंग में अगर कुछ करना है, यू नो, अपार्ट फ्रॉम द एडवेंचर लाइफ और कुकिंग में कुछ करना है, या फिर उसके दूसरे कुछ ड्रीम, शी इज ऑल्सो गुड डांसर, तो अगर उसको कुछ भी एक कोई चीज करनी है तो उसके पीछे फुल उसका डेडिकेशन होता है, फुल वो टाइम स्पेंड करती है टू लर्न एंड यू नो कंप्लीट हिज ड्रीम। तो वो उसका बहुत पॉजिटिविटी काफी, वो मुझे भी सपोर्ट करती है उसी चीज के लिए, मुझे भी लाइफ में, एंड वो हमेशा रेडी रहती है टू यू नो एक्सप्लोर अ न्यू थिंग, अभी और कुछ भी नई चीज को एडॉप्ट करना या उसको ये करना, वो उसमें वो काफी वो एक्टिव रहती है और एंथू रहती है। ये इनकी खूबी है कि आप कुछ भी बोलिए वो फटाफट लर्न करके अडैप्ट कर लेंगी और प्रेजेंट भी कर देंगी। तो डांस की बात सुन के तो आई एम सो हैप्पी, आई ऑल्सो लव डांस। प्रेजेंटेशन तो यहाँ देख नहीं सकते, बट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हर। सर और कुछ है जो, और ऐसा कोई पिन पॉइंट जो आप बताना चाहेंगे जिसको हम फर्दर मैडम के साथ डिस्कस कर सके? मेरी डॉटर भी है एक, थी, आई मीन से शी इज 10 years old and she is pass away, but उसके वो स्पेशल चाइल्ड थी, उसके साथ वो केयर करने में वो काफी मतलब कहीं पर भी मतलब उसने, हम दोनों ने मतलब ऐसे नहीं सोचा कि हमारे लाइफ में ये मोड़ आया तो हम सब कुछ स्टॉप करेंगे। वो उसके साथ भी सब ऑड्स के साथ भी वो उतना ही एंथू होकर सब चीज कर रही थी, मतलब यू नो स्टार्ट रनिंग, हम लोग ने कहीं पर भी हमारे लाइफ में कभी पॉज नहीं लिया अपार्ट फ्रॉम द ऑल द ऑड्स, एंड शी इज यू नो ट्रू फाइटर, मतलब इन टर्म ऑफ कि कोई भी सिचुएशन आई तो हम उस चीज के साथ फाइट करके आगे मूव करेंगे। एक्चुअली हैट्स ऑफ। ये सुन के तो थोड़ा दुख हुआ हमको बहुत ज्यादा, बट ये सीरियसली शी इज अ ट्रू फाइटर और रियल हीरो जो हम बोलते हैं, रियल हीरो नहीं, रियल हीरो। आई विल यू नो कैटेगराइज यू दीपा फॉर दैट। आप दोनों ने बहुत बड़ा चैलेंज फेस किया फॉर द चाइल्ड विच यू आर टॉकिंग। wherever she is, let's pray for her, and I'm sure she is there in your heart and आपके सराउंडिंग में ही है वो बच्ची आपके साथ। थैंक यू प्रदीप जी। और कुछ एक कुछ है लास्ट वर्ड फॉर ऑडियंस एंड फॉर दीपा जी, आप जो लाइव बोलना चाहेंगे, सो दैट आई कैन देन फर्दर स्पीक टू हर? यस, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं सबके लाइफ में, यू नो नॉट इवन मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, काफी लाइफ में काफी लोगों को अप डाउन्स आते हैं, बट जस्ट इतना कहना चाहूंगा कि जस्ट कीप मूविंग, यू नो। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑड्स, अगर सब किसी के भी लाइफ में आते हैं तो जस्ट मैं इतना कहना चाहता हूँ, गॉड इज विथ अस and just be positive and move ahead. थैंक यू सो मच प्रदीप जी आने के लिए। आप म्यूट करके और वीडियो ऑफ करके बने रहिए। आपने बहुत अच्छी चीजें हमको बताई है दीपा जी के बारे में, तो जरा दीपा जी से हम वो उसका पुष्टिकरण कर लेते हैं। इतना प्यार है आप लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर विद अस। आप बने रहिए, बट वीडियो ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। तो दीपा जी, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने कवर करे। सम वाज वेरी इमोशनल मोमेंट भी उन्होंने हमसे शेयर किया आपकी लाइफ का। आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बिकॉज ऑडियंस जानना चाहती है कि इतने ऑड्स के बाद, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यू आर हियर विद अस। दो इट वाज रियली वेरी सैड टू नो दैट, बट हैट्स ऑफ टू यू डियर। गॉड ब्लेस यू। As Pradeep, after marriage in few years, we blessed with the daughter, Misri, and after few months, I started realize there is something, and doctor cleared me that's a special child. In pregnancy, I don't have any clue about this situation. So then after 3-4 months, I realized that something is
odd and my life. Then doctor said me that she was a special child. So as a special child, took special care, right? I have to be there for 24 into 7 hours for her. And my entire day was with busy with her, and I know that I have to take care of her very specially. In this situation, like as I'm said कि मैं पूरा दिन उसी के साथ रहती थी, वो सिचुएशन होने के साथ साथ पहले तो मुझे थोड़ा एक्सेप्ट करने को ऑनेस्टली टाइम लगा, बिकॉज आई एनी क्लू कि लाइक स्पेशल चिल्ड्रन क्या होता है, मुझे कहाँ से जर्नी शुरू करना है. इन बिटवीन 5 years I was with the doctors and others, physiotherapists, and then I have to go through with the different doctors, different hospitals for the visit and everything. So then my entire day with her, and थोड़ा एक्सेप्ट करने को शुरू में आई फील कि अभी मेरी लाइफ में व्हाई मी कि मेरे साथ ऐसा क्यों है. तो देन आई एक्सेप्ट. फिर एक बार मैंने सोचा कि ये एक्सेप्ट करना ही है मुझे, तो ये बात भी मुझे काफी स्ट्रांगली एक्सेप्ट करना पड़ा कि या वी ब्लेस्ड विद मिसरी एंड शी वाज अ स्पेशल, एंड बस उसी के साथ हमारा पूरा दिन निकल जाता था. तो देन उसके बाद भी वी रियलाइज कि अगर मुझे मिसरी के लिए और बेटर करना है, उसे एवरी डे आई हैव टू गिव स्पेशल केयर, तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. अगर मैं खुद फिट रहेगी तो I can look after for her very good. So then I started doing morning walk. Then काफी लोग ऐसा भी होता है, you have a very pressure from the society and others thing. लोग, मैं जब भी बाहर जाती हूँ मुझे देखते हैं, मिसरी को देखते हैं. Nowadays अभी भी है ये हमारे कल्चर में कि हम अगर कोई स्पेशल चिल्ड्रन बाहर आया तो हम उसी की तरफ देखते रहेंगे, हम उसी की बात करते रहेंगे. So there is still in our society. तो then वो चीज भी मेरे साथ होती थी कि मैं जब भी नीचे जाती हूँ तो लोग मुझसे यही क्यों पूछते, मिसरी को क्या है, कैसे है. तो then I realize कि वो जैसी भी है, जो भी है मेरी लाइफ में, मैंने उसे एक्सेप्ट किया और मैं उसी के साथ सब जगह जाती थी. और मैंने एक दिन रियलाइज भी किया कि मैं उसके बारे में किसी से कुछ छुपाऊंगी नहीं, जो है जैसा भी है वो मेरे साथ है और इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ. So then उसी के साथ साथ फिर I started running, walk and jog morning के लिए. After pregnancy I put on a lot of weight, like 90 kgs. So then I can't believe mirror myself कि यार ये मैं हूँ. So then I started walk and jog to reduce my weight, and after running I feel regenerated. Like it's my me time. Running was my me time. कि जब मैं जाती हूँ, it's my time, and it's keep me away from all thoughts like घर, मिसरी, parents, family. It's keep me away from everything. So I give 30 minutes every day for myself to go for run and anything, and it's give me a more strength to do my daily routine activity. So then वहाँ से ये journey शुरू हुआ. Then half marathon, then walk and jog turned into the half marathon. After the half marathon, Pradeep thought me about you take part in dream run. So I insist him that I will take a part in a half marathon because you are doing. So I wanted to be with you in a half marathon. So we started slowly, gradually we'll train, self-training plan, and started walk and jog turned into the runs. And after run, and the race day was very different. I started very slow. Pradeep ran very fast at the race day, half marathon, our first half marathon. And Pradeep first because कौन सा ईयर में था वो जब आपने स्टार्ट किया था? Any idea? I think 5 years back. So I think 2015 or 14 was my first half marathon. And that day was very different, and we trained for that, and Pradeep run very fast. और because तब हमें इतना running के बारे में इतना पता नहीं होता है कि you have to execute your race, like you have to execute your races. So then Pradeep ने by mistakenly बहुत fast कर दिया था, और मैं स्टार्ट मैंने स्लो किया था, बट एंड लास्ट 2-3 किलोमीटर में प्रदीप मुझे दिखा. मैंने कहा यार मैं तो प्रदीप से, हाँ, और मैंने कहा मैं तो प्रदीप से फास्ट भाग ही नहीं सकती, प्रदीप इतना यहाँ पे मुझे मिल गया. सो आई फील कि हाँ, आई थिंक मैंने यहाँ अच्छा किया है ऐसा.
So I was full charge and I want to finish my first half marathon very good. And मुझे रास्ते में middle of the way प्रदीप मिला और then अभी मैंने कहा अब मैं यहाँ प्रदीप को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ. So we finished like a filmy style, हाथ में हाथ रख के first full marathon we finished in 2 hours and 30 minutes. After first half marathon, we realized that is a decent timing, 2 hours 13 minutes. Then I like to accept all challenges in my life. तो इसी के साथ हमने हाफ मैराथन के बाद फुल मैराथन से अल्ट्रा रन्स इज बियॉन्ड 42 kilometers, and then now a triathlon, cycling, others, so many things. And in this period my family was very supportive with me. Very important. Yeah, तो very important. जॉइंट फैमिली में आप तो जॉइंट फैमिली का सपोर्ट अगर मिल जाए तो बात ही क्या है. बात ही क्या है, मतलब एवरी फैमिली मेंबर वाज थिंक कि अगर दीपा सुबह जाती है तो दे टेक केयर ऑफ मिस्री, माय फैमिली मेंबर, माय सिस्टर इन लॉ, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ हर. कि अगर दीपा किसी रेस में जाती है तो दे विल मैनेज हर. Even a lot of friends, family members, they are very supportive. My mother-in-law was very supportive with me at that time, and she really मैं बाहर जाऊंगी अगर मेरा रेस है, and I said mama I will come at 12 o'clock, so she took care of her everything. So nice, so nice. That's all. To a mother-in-law like this. Yeah. You are. Yes. Yeah. So then slowly we'll started the runs, marathon, and Pradeep pushed me really hard. And then एक के बाद काफी जर्नी शुरू हो गई. काफी सारे मैंने challenges. I wanted to like be in a challenges. अभी next क्या? First 75 kilometer, then I achieved 100 kilometer. Back to back consecutive years, I was in a podium finisher in open category. Wow. So then this thing, and उसके बाद Pradeep also watching a triathlon now that time, and वो triathlon काफी देखता था. तो he said कि यार this is a something new. I wanted to do triathlon. There is a swim, cycle, and run, all three sports together. I wanted you to tell the audience कि ये triathlon होता क्या है. Please क्या है? so that उनको भी समझे कि it's a three things together, right? Yeah. So in triathlon, first is swimming. After swim, you have to ride. Oh. After immediate ride, you have to do a run. So there is swim, cycle, run, all three sports together called triathlon. Wow. In India, 4 years back, there is very less people know about the triathlons. What is a triathlon? Pradeep started swim, cycle, run. तो वो भी triathlon का मेरा journey भी प्रदीप ने एक first half किया. Then I said प्रदीप, मैंने बोला मैं swimming नहीं करेगी. तो he said अगर उसको मैंने देखा कि हाँ this is something new, तो then I started learning swimming, and swimming सीखने को मुझे काफी समय गया. As I said 6-7 months. Every time when I was in water, मेरे पेट में ऐसा बटरफ्लाई होता है. मैं कहा प्रदीप मैं रोज स्विमिंग में जाती हूँ और it was butterfly. And I know मैं जनवरी में स्विम सीख रही थी. बहुत ठंडा पानी था. I said every day वो शॉक लेना it's difficult, but I wanted to do keep challenging. क्या swimming नहीं आ रहा है. I want to improve my swim, and as a swim for the triathlon I have to be open water swimmer also. Oh wow, open water swimmer. थोड़ा बताएंगे उसके बारे में. Open water मतलब आपने किधर swim किया होगा उस? हाँ, open water swim होता है. पहले in generally for the race हम लोग swimming pool में ही practice करते हैं. और ये swimming pool में मेरा पूरा practice हुआ because we both are supposed to do a Colombo race. There is half Iron triathlon, half Ironman. There is a swim, bike and run. Okay. तो उसके लिए मैंने यहाँ ट्रेनिंग किया स्विमिंग पूल में. एंड फर्स्ट डे वी वेंट फॉर द ओपन वाटर स्विम. ट्रायल स्विम होता है रेस के एक दिन पहले. Okay. Okay. तो मैंने यहाँ मेरा ट्रेनिंग पूरा किया और आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि नाउ मैं कभी भी अभी स्विमिंग नहीं भूलेगी. एवरी डे मेरा वो हाथ पूरा दिन घर में भी ऐसे ही चलता था कि प्रदीप आई एम डूइंग राइट माय पोस्चर, एंड फॉर द ओपन वाटर यू हैव टू बी योर पोस्चर has to be correct form. Your form should be very good. Not the simple swimming nahi hoga. He said for the race.
तो ओपन वाटर स्विम, ट्रायल स्विम में गए और मैंने वो फर्स्ट वेव मुझ पे आते देखा, तो मेरी दोनों आंखें ऐसी बाहर हो गई थी। एंड प्रदीप स्टिल रिमेम्बर दैट सीन कि प्रदीपा तू वो ओपन वाटर पानी देख के तेरी आंख कैसी हो गई थी। मैंने कहा यार ये तो नहीं होगा। तो तो वो दैट, किधर था? व्हाट वाज दैट ओपन वाटर? किधर आपने जाके स्विम हाँ किया था वो वो? कोलंबो में मेरा रेस हुआ था। कोलंबो में। ओके हाँ, ओके। अच्छा, इंटरनेशनल हाफ मैराथन आयरन मैन। सो देन हम लोग इसी के लिए गए थे, मैं और प्रदीप दोनों ने ट्रेन किया था। एंड लवली लवली। फिर क्या हुआ? बस वो देख के फिर मेरे कोच पीछे थे एंड वो बोले दीपा यू हैज टू पुट डाउन योर फेस इन अ वाटर। आई सेड कोच ये कैसे होगा, यहाँ इसमें पानी कैसे जाएगा, एंड इट्स अ सॉल्टी वाटर ना, यू हैव टू बी ब्रीदिंग प्रॉपरली, tomorrow is my race हाँ and I'm not ready to put my head down and I can't do like swim for the race. तो कोच ने पीछे से देखा और उसके साथ ही प्रदीप खड़ा था। दोनों ने मुझे 6 मंथ के लिए ट्रेन किया था। एवरी डे प्रदीप इज मॉनिटरिंग माय स्विमिंग पेस, माय एवरी डे कि आज तक का तेरा कितना हुआ, बिकॉज देयर इज कट ऑफ। अगर आपने स्विम खत्म नहीं किया तो आप आगे तो की आप रेस में नहीं जा सकता। तो देयर इज कट ऑफ। तो बोथ आर वरीड कि अगर दीपा ने स्विम नहीं किया ना तो वो आगे नहीं जा सकेगी रेस के लिए। ओके। तो इसी के साथ प्रदीप रोज मेरा मॉनिटरिंग करेगा, आज तेरा कितना पेस है, कैसे आया, क्या करेक्शन है, योर फॉर्म करेक्शन, एवरीथिंग इज लुकिंग एट मी दैट टाइम। एंड फिर कोच ने मुझे पीछे से बोला अगर कल रेस करना है तो यू हैव टू पुट डाउन योर फेस इन सी। ओह ओके। तो देन एक बार मैं वो शुरू किया, उसी दिन थोड़ा सा मैं गई एंड देन आई डिसाइड कि अगर कल मुझे रेस करना है तो ये मुझे करना ही है। तो फिर वो मैंने डिसाइड किया और नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माय स्विम। देयर इज 1 hour 10 minutes कट ऑफ and I finished my swim leg in 1 hour 8 minutes, just margin of 2 minutes. वेरी गुड वेरी गुड। तभी भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मुझे पीछे आई वाज द लास्ट इन स्विम, सब लोग बाहर निकल गए, मैं अकेली थी वो स्विम में। और आई सेड कि कुछ तो भी मेरे साथ हो रहा है, सब बोट कयाक्स एंड एवरी सपोर्ट वॉलंटियर्स विथ मी। एंड आई सेड अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो आज का मेरा रेस नहीं होगा। आई स्टार्ट कुछ भी सोचे बिना, आई फोकस ऑन माय स्विम। So then started मैंने कहा जो भी होगा बाहर देखा जाएगा, टाइमिंग जो भी होगा। So it was 1 hour 8 minutes my swim section and luckily 2 minutes was margin and I pursue my that race just because of swim. Then it was drive. Yeah, then after we have to ride 90-kilometer bike ride. Okay right. After 90 kilometer we have to run 21-kilometer run again. Oh my god, this is like hats off। ये जो सब हमने मूवीज में देखा है जो एक्टर्स करते रहते हैं ना कुछ ऐसा सब, बट वो आप रियल बता रहे हैं तो सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। You have some videos of this? You have some videos, recorded videos of all this? Yeah, we have a swim video. मेरे ऑडियंस को भी हम लोग शेयर करेंगे, आप प्लीज हमसे शेयर करिएगा ये आगे चल के। आपके दोस्त कैसे रहे आपके साथ में? आपने दोस्त कितने बनाए इस टाइम में? कहूँ तो मेरा ये काफी सारे फ्रेंड्स, मेरे ये रनिंग मेरे स्पोर्ट्स से काफी सारे अच्छे मुझे फ्रेंड्स मिले हैं। दे आर वेरी सपोर्टिव ऑल्सो। लाइक हम मुझे और प्रदीप को अगर कोई रेस करना है तो वो सामने से बोलते तुम दोनों रेस करो, विल टेक केयर ऑफ मिस्री। कभी कभी रात को 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक मिस्री भी हमारे साथ में कार में होती थी। एंड हमारे फ्रेंड्स कार ड्राइव करते थे, एक फ्रेंड हमें सपोर्ट करता था। इन दिस जर्नी ऑल फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव। समटाइम्स एज अ फीमेल एथलीट और एज अ फीमेल रनर इट्स डिफिकल्ट टू रन एट midnight 2 o'clock or 3 o'clock for the run. So they said ke will support Deepa and Pradeep, if you want to take care time of मिस्री। तो प्रदीप मिस्री को देखता था और तब मैं अपना रन करने को जाती थी। वाह यार वाह। तो आज फ्रेंडशिप डे है तो हमने ना आपके कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है। 5 मिनट हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि दीपा के साथ जो उन्होंने सपोर्ट किया है ये टाइम पे, आई थिंक इट इज कमेंडेबल। लेट्स कॉल विनोद फर्स्ट। हाय विनोद जी, वेलकम। हाय, इट्स गुड टू सी यू। हाय दिनेश। अभी आपके बारे में सुना मैंने कि आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है दीपा को, एंड दैट इज द रीजन दीपा इज
doing a commendable job. ये रन सुन के ना मेरे अंदर एक वो आ रहा है, जोश आ रहा है, मेरे अंदर एक जोश आ रहा है कि कितना मतलब एफर्ट लगता है इस काम में करने में, रात को रन करना, यू एज फ्रेंड सपोर्टिंग. तो थोड़ा सा आप दीपा जी के बारे में बताइए ना प्लीज, आपकी कैसी जर्नी रही है इनकी. Well, about Deepa, I would like to tell that I know her from the last 7 years. We've been training together. Deepa is a very strong-headed individual with a very go-getting attitude and a high energy. She inspires many people in our group, basically. We enjoy training together and supporting each another to achieve our goals. Like her husband, Pradeep said, we call her a superwoman because the challenge for her was completely different compared to other ladies who were training, because she was a mother of a special child. The kind of dedication and the time that is required for that is far more than she used to come out with a smile in the morning. Probably she must have stayed back late in the night. Commendable. This lady, we call her a superwoman in our group. Superwoman. Agreed. I agree with you, Vinod. I really agree with you. तो it's like आपके साथ कितना टाइम से आप फ्रेंड्स हैं? आज फ्रेंडशिप डे, तो थोड़ा सा अपनी दोस्त के बारे में और क्या स्पेशल मोमेंट्स शेयर करना चाहेंगे? We know we've been training together. In fact, some of the triathlons also we have done together. So that requires, putting in nearly 3 to 4 hours of training daily. And as she said, sometimes it was we who were taking care of her daughter, Misri. And she drew a lot of strength from her daughter, Misri. I agree with you. Though Mystery is not there, but her memories and her thoughts are so fresh with her, and I am sure Mystery has been a motivation factor for Deepa. I feel, in spite of all odds, she has been actively doing all this because unko pata hai kahin to she also wanted her mother to be so strong. So nice. Any special moment, Vinod, anything else you would like to talk about Deepa, जो आपको मतलब बोलते ना एक ऐसी याद जो कभी भूल नहीं सकते उनके साथ कुछ? One incident I can share is when she had completed a half Ironman. That was in 2016 or 17. I think Deepa will clarify better. Mm-hmm. I remember we had trained together, and for some reasons, due to my daughter's we couldn't train together, and she had completed that. So that is one of the things that comes into my mind, how we trained together and the time we spent together training for that. Thank you. दीपा जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने फ्रेंड से फ्रेंडशिप डे वाले दिन, and on a special talk which we are having, your story here? Yeah, I'm blessed with such a good friend in this sports community, from the sports community. Like they already supports me, and I still remember Vinod, मुझे रात को 2 बजे भी हम लोग साइकिल के लिए he picked me from my home, and रास्ते में रात को 2 बजे इतना, और I have to come back quickly at home around 4 or 5. I have to come back. तो रात को मुझे भी come for pick up me, and उसके बीच में एक बार बहुत सारे कुत्ते आ गए, तो he supports me in that situation. क्या protective friend बोलेंगे, protective friend, and they are ready anytime. They are ready. If you want to run, we'll support you. If you want to ride, we'll support you, and they guide me. I'm a highway cyclist. Okay. And highway per cycling is very difficult from local cycling, right? Mm-hmm. So they always guide me proper instruction on a ride for a highway riding, cycling. So they always guide me a good road sense and this thing, like तुझे यहाँ पे कैसे चलाना है हाईवे में, you have to support, तेरा खुद का भी ध्यान रखना है, व्हीकल से तुझे कैसे ध्यान में रखना है. So they always ready to support, and they teach me very important things, very good lessons in my life. So इसे बोलते हैं दोस्ती, isn't it, Vinod? I truly agree. Hats off to you. Thank you for being there with us. I have one more friend जो wait कर रहे हैं.
हम चाहते हैं उनसे भी कुछ बात करें. सो विनोद जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद अस. बने रहिए हमारे साथ. हम नितिन जी से बात करना चाहते हैं. नितिन काले जी इज हियर एंड वो भी दीपा जी के एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, सेम कम्युनिटी से. नमस्कार जी नितिन जी. प्लीज अपना ऑडियो को जरा देख लें. कॉल वाया इंटरनेट वाला बटन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो. जब तक मैं दीपा जी से जानना चाहूंगी, दीपा जी आपकी नितिन जी से कैसे दोस्ती हुई और कैसे आपका रिलेशनशिप बना? हाँ, हम लोग नितिन और विनोद दोनों से ही नेशनल पार्क में मिले. हम लोग एक दूसरे को रोज रन पर देखते हुए खाली जस्ट स्माइल पास करना. प्रदीप के साथ भी हम लोग मैं और प्रदीप जब भी नेशनल पार्क जाते थे, वो सामने से हमें दोनों रोज मिलते थे. विनोद तब साइकिल पर मिलता था, नितिन ऑलवेज यूज्ड टू रन. एंड नितिन के साथ एक मेरा मेमोरीज खास जुड़ा हुआ है. आई स्टिल रिमेम्बर कि एक बार मैं नेशनल पार्क में अकेली 30 किलोमीटर रन कर रही थी. आई एम डूइंग माय लास्ट लॉन्ग रन फॉर द माय रेस, 30 किलोमीटर. एंड नेशनल पार्क में वन लूप इज 5 किलोमीटर. So then return is 10 kilometers. मेरा लास्ट थर्ड लूप था. देन दैट टाइम वी डोंट नो ईच अदर. तब मैं नितिन को भी नहीं पहचानती थी. और मैं मेरा लास्ट थर्ड लूप लाइक नेशनल पार्क में सब लोग घर चले गए थे, सारे रनर 10 बजे, और मैं अकेली थर्ड लूप के लिए जा रही थी. तो दैट टाइम नितिन ने ऐसा क्लैप किया कि गुड मैडम. नितिन और विनोद अभी भी मुझे मैडम कह के ही बुलाते हैं दोनों. So then नितिन ने ऐसा क्लैप किया कि अब वेल डन. ऐसा 30 किलोमीटर के लिए ये लड़की तीसरी बार मुझे रास्ते में मिल रही है, ऐसी थर्ड टाइम जा रही है. तो दिस इज अ मेमोरी विच अटैच. फर्स्ट टाइम वी नो नितिन के भैया उसने ऐसा क्लैप किया कि अकेली. अभी नेशनल पार्क में भी सब रनर घर चले गए हैं 10 o'clock एंड शी इज गोइंग फॉर अ थर्ड लूप एंड इट्स ग्रेट. तो वहां से शुरू हुआ. एंड देन प्रदीप, नितिन और विनोद, ये तीनों की ऐसा बोलते हैं ना जोड़ी है अभी भी रनिंग ग्रुप्स में. तो ये तीनों हमेशा साथ में ही रहते. इस तरह से हम एक दूसरे की फैमिली के साथ भी जुड़े. मैं, प्रदीप, नितिन, विनोद, उनकी वाइफ मीनाक्षी, प्रिया. तो उनके साथ हम लोग ने काफी अच्छा बाइकिंग ट्रिप किया है, 2000 किलोमीटर भूटान. फैमिली ट्रिप था क्या? है हाँ, नितिन, अब कैन वी हियर हिम? नितिन जी, नितिन जी की आवाज कनेक्ट नहीं हो पा रही है. टेक्निकल टीम चैट में अगर एक्सप्लेन कर दे तो. नितिन जी एक बार और बोल के देखिए ना प्लीज, हम आपको सुनना चाहते हैं. अगर वहां पर एक कॉल बटन होता है लेफ्ट साइड में, एक बार आप ट्राई करिएगा. तो तब तक मैं दीपा जी के करंट जो काम कर रहे हैं, आप जुम्बा ट्रेनर हैं, रिबॉक से जुड़े हुए हैं, डांसर हैं, फिटनेस गुरु हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए. आप किससे एसोसिएटेड हैं प्लीज? हाँ, currently I'm a Zumba trainer also and ऐसा like बचपन में मैं बहुत शीशे के सामने डांस करती थी. तो वहीं से मेरे अंदर डांस आया हुआ है कि मुझे टीवी में देख के, तब इतना यूट्यूब नहीं था, तो आई वाज वेटिंग वन सिग्नेचर स्टेप के लिए. पूरा दिन में वो MTV लगा के रखती थी कि वापस वो सॉन्ग आएगा तो मुझे वापस वही स्टेप करना है टीवी में से देख कर. तो इस तरह से मेरा डांस हुआ. तो अभी जैसे कि मिस्री को, she was passed away before 2 years. Okay, just 2 years. तो after suddenly, हाँ, तो ये 2 साल में मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरी लाइफ खाली सी हो गई. I have empty. इतना सारा टाइम था जबकि मैं पूरा 7 दिन मिस्री के साथ रहती थी. तो देन अगेन फिर ये सिचुएशन में भी प्रदीप ने बोला यू हैव टू कीप बिजी योरसेल्फ. तुझे कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बिजी रखना होगा कि अब अगर मिस्री नहीं है तो तेरा इतना टाइम है, तो यू डोंट वेस्ट योर टाइम, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग इट. तो फिर धीरे धीरे इन 2-3 सालों में मैंने काफी सारे सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड ट्रेनर कोर्स किए हैं. So and I love kids. तो मैंने जुम्बा किड्स भी किया है ताकि मैं किड्स के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएट रह सकूं. तो इसी के साथ मैंने इन 2-3 सालों में काफी सर्टिफिकेशन लिए हैं. और आई लाइक कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ. कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा लगता है अब इसके बाद अगर ये हो गया है तो आई हैव टू वन स्टेप लेवल अप. अभी मुझे आगे और क्या करना है, कैसे करना है. तो दिस इज थिंग. एंड पर्सनली आई फील आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग. कि एक बार मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली, और मैं बोलती हूँ ये मुझे मेरी माँ से आया है. एक बार मेरे
दिमाग को फिर कोई हिला नहीं सकता कि अगर मुझे उस दिन 14 आवर्स तक मुझे 100 किलोमीटर करना है तो मेंटली आई वाज स्ट्रांग एंड इट्स Wow. कम्प्लीटली मेंटली गेम. तो आई पर्सनली फील कि जो भी है यहाँ से होता है, मेरा हाँ मेरा ना. तो माइंड रूल करता है, थॉट एंड विल पावर, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक इंसान को. और आप जैसे वंडर वुमन के साथ बात करके ऐसा लग रहा है कि मतलब आई थिंक जितने लोग हम देख रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ हर लॉस डॉटर हु इज नो मोर, शी इज स्टिल वो अपने अंदर मदरहुड होते हुए शी इज वर्किंग, अपग्रेडिंग हर सेल्फ, सर्टिफाइंग हर सेल्फ. आप किड जुम्बा करते हो, मेरा खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपको मैं बताऊंगी, प्लीज डू कम. ब्रेन्स ब्रिज एकेडमी करके है, तो जहाँ पर हम लोग जुम्बा फॉर लेडीज, जुम्बा फॉर किड्स, वी यूज्ड टू डू योगा भी बच्चों के लिए करते थे. तो फिटनेस हैज बीन अ पार्ट ऑफ द सेंटर फॉर दैट एंड बस यही था कि डांस अच्छा लगता था, तो आई जस्ट कंबाइंड फिटनेस एंड डांस टुगेदर. तो दिस इज द बॉली बीट एंड जुम्बा, दिस इज अ डांस फॉर्म फिटनेस. तो आई एक्सेप्ट दैट कि वो करना चाहिए. आप गाना भी गाते हो क्या मैम? नहीं इतना नहीं गाना. थोड़ा बहुत अगर हमें सुनाना चाहे, बॉलीवुड बीट हाँ, हुआ तो मतलब आज के लिए प्लीज. आज के लिए ना, तेरा यार हूँ मैं, तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू चुप है तो फिर कौन रहेगा, तेरी वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं. सुपर. दिस इज कॉल्ड स्पोर्टिंग स्पिरिट. मतलब मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं ऐसा बोलने वाली हूँ, मेरा मन किया, बिकॉज जो बंदा डांस करता है उसके अंदर गाना तो लिप रिदम ऐसा रहता ही है. रहता ही है. मैं बॉलीवुड कभी भी डांस को देख नहीं सकती. कोई बोलेगा बैठ के देख, मैं कहा नहीं, मैं फ्लोर पे मिलेगी किसी भी टाइम और तुम लोग बैठो. सही है. बॉलीवुड के बारे में बताइए ना थोड़ा सा, मतलब वी आर चेंजिंग फ्रॉम योर रनिंग टू बॉलीवुड, इफ यू कैन जस्ट शेयर. Yeah, it's a dance fitness form, and there is also strengthening, stretching, and in Zumba we follow international song. Yes. And now in Bollywood में हम लोग अपने song को follow करते तो people will connect very easily. अगर मैं जुम्बा में इंटरनेशनल सॉन्ग काफी लोगों को अगर नहीं हुआ तो बॉलीवुड के सिंपल लाइक भंगड़ा है जो हमारे ब्लड में है, गुजराती है तो गरबा है आपके, तो वो इजीली लोग उसे कनेक्ट करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द बॉलीवुड डांस फिटनेस. इट्स 40 to 50 minute 1 hour dance form. Okay. There is strengthening, stretching, cool down, and I'm certified in that. So and every month and every day something new song, so it's give me a good मोटिवेशन करता है. like it's keep you in a good mood. like आपके घर पे इतना स्ट्रेस है, मुंबई एवरीबडी इन स्ट्रेस, तो अब वो 1 घंटे का क्लास में आते हैं तो यू आर स्ट्रेस रिफ्रेश, पूरा रिफ्रेश हो जाते हैं. एंड आई फील ना कि अगर मेरा एक ये भी है कि अगर आपके पास स्पेशल चाइल्ड है, अगर आपके साथ स्पेशल चाइल्ड है, तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि वो मदर कुछ कर नहीं सकती या उसे बाहर नहीं जाना है. ये मैं एक छोटा सा मैसेज इस थ्रू दूंगी आज के हमारे सेशन में. अगर कोई स्पेशल मदर हमें सुन रही है या हमारे साथ है तो प्लीज अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए और बिल्कुल बाहर जाइए. और अपने लिए करेंगे तो आप दूसरों के लिए काफी अच्छा कर पाएंगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हो. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने आपके लिए कुछ टाइम निकाला तो डोंट फील गिल्टी फॉर योरसेल्फ, कि आप अपने लिए गिल्टी फील मत करो, आप अपने लिए कर रहे हो कुछ. एंड खास करके इसमें थोड़ा फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए. अगर आपके साथ फैमिली मेंबर भी है तो अगर वो आपको सपोर्ट करते तो डेफिनेटली एक स्पेशल मदर के लिए भी ये भी है कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए. कि ऐसा नहीं कि अगर आपकी लाइफ में ये है तो आपकी लाइफ खत्म हो गई है. काफी सारे मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि एक उनका लाइफ का बहुत सारा पीरियड इस दौरान चला जाता है, लाइफ का 30 years 40 years, तो वो माँ की कुछ जिंदगी नहीं है आज.
जितना भी मिले, जैसा भी मिले, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, अपने लिए बाहर जाइए। चाहे कोई कुछ भी बोले कि यार इनके पास स्पेशल चाइल्ड और इसकी मम्मी बाहर है, तो किसी का नहीं, सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ ना कुछ जरूर करना है। करेक्ट। तो मैं ये वापस ऑडियंस को दोहराना चाहूंगी, किसी का घर में अगर बच्चा स्पेशल चाइल्ड है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, मी टाइम जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, मी टाइम इज मस्ट, बिकॉज वो अगर आप अपने आप को नहीं देंगे तो यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड अप। तो अपने लिए मी टाइम निकालिए। इट कैन बी मेडिटेशन, इट कैन बी रनिंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी सिंगिंग। डू यू एग्री विद मी दीपा जी? Yeah, एनीथिंग, anything, whatever you like, do it. व्हाटएवर यू लाइक। और नॉट ओनली टीवी इडियट बॉक्स नहीं देखना है हमको, उससे सीखना भी बहुत कुछ है। हमारे शायद नितिन काले जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, कैन आई हैव यू ऑन द लाइन, बिकॉज समय कम है। आपको मेरी आवाज आ रही है नितिन जी? Yes, yes, you are. Yeah, Thank yeah. you. Thank you so Okay. much. So, Happy Friendship yeah, Day to yeah. you, sir. And your friend Deepa ji is here with us. तो मैं आपसे थोड़ा सा, हम इनसे आप कैसे कनेक्ट हुए वो तो इन्होंने बता दिया, आपको कैसे इनका वो ताली बजाना आप हमसे शेयर करेंगे? Okay. So, happy Friendship Day to all of you, especially to Deepa also. And against all the odds, I could connect, and my voice is audible right now. Okay. Yes. So on that note, yes, I remember a girl having a long choti, and she is running all the time in the national park. So that's the first image that I think about when I think about Deepa. So Okay. I used to, I mean, jokingly I used to tell friends that दीपा की ताकत उसकी चोटी में है. ओहो, ये किसी मूवी का डायलॉग भी है शायद। हाँ. So yes, these are the first images that I think about Deepa. As I mean, Vinod also said about her, and Pradeep also, of course, said about her. What I personally find about Deepa is that she is very strong-headed. Another quality of her is that she is very caring. I mean, I remember one incident कि हमारा जो रनिंग का क्लब है नेशनल पार्क में, हम रनिंग करते, तो हम लोगों ने क्लब बना के एक मैराथन ऑर्गेनाइज किया था। तो मैराथन ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में मैं था। तो प्रीवियस डे हमें बीप्स देने पड़ते। बीप्स यानी कि जो नंबर होता है जो लगा के टी शर्ट पे हम रनर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग दिन भर वहाँ पे थे। तो दीपा खुद से कुछ जूस बना के घर से लेके आई, और सब वॉलंटियर जो हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनको सबको उसने दिया था। तो आई मीन, शी इज गुड रनर, शी इज अ गुड डांसर, अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी केयरिंग पर्सन. दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हर. थैंक यू सो मच नितिन जी। ये इतने, मतलब आपने इतने प्यार से, इतने मतलब बोलते हैं ना, स्वीटली एक्सप्लेन कर दिया दीपा जी के बारे में कि मतलब बोलते हैं दिल छू गया, ऐसा है। दैट्स बोलते हैं ना ट्रू स्पिरिट और ट्रू फ्रेंडशिप उसको बोलते हैं। थैंक यू नितिन जी फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फाइनली आउट ऑफ ऑल ऑड्स या अगेंस्ट ऑल ऑड्स you have connected with us, and that's the show all about. So दीपा जी, थैंक यू। नितिन जी, मैं वापस दीपा जी से जरा लास्ट की बातें कर लूं, and Sure. please stay with us. In the end we will still talk to you after the show, so बने रहिए हमारे साथ। Sure. Okay. दीपा जी, so as आपको पता है 1 घंटा बीत चुका है। मतलब बातें वाला है। हाँ, मतलब जस्ट 5 मिनट बचे होंगे 1 घंटा होने के लिए, और हम लोगों ने इतनी आपकी जो जर्नी के बारे में हम सुनते गए, मतलब पता ही नहीं चला। मुझे तो लग रहा है शायद अभी बहुत सारी बातें हैं जो अनकही है ना। तो कुछ और मोमेंट्स जो आपके हैं, जो आप हमसे, जैसे हम बात कर रहे थे कि स्पेशल चाइल्ड की मदर्स के लिए, या एक कोई भी पेरेंट, अब मदर मैं बोलूंगी, जिनका बच्चा छोटा भी है, तो नॉर्मली क्या करते हैं सब लोग, पूरा टाइम बच्चा 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 करते हैं, बट और फिर बाद में बड़े हो जाते तब बोलते देखो मेरे पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी। वो ना सुनना पड़े, इससे बेटर है आज उस मदर को मैं बोलूंगी, सी मेन अपना टाइम निकाल लेते हैं, बट फॉर लेडीज
they really need to take out their me time. सब काम करने के बाद भी there is life for them, so they should do something for their entertainment, their fitness, their learnings, and upgrade themselves. जैसे कि मैं तो करती हूँ and I really love doing it. तो दीपा जी, और ऐसा कोई मोमेंट और स्पेशल मोमेंट अगर हम मिस कर गए हो, आपने बताया ना हो, तो वो मैं जानना चाहूंगी. लाइक ऐसा है कि मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था रनिंग से, और अभी मैं साइकिलिंग भी उतना ही पसंद करती हूँ. मैं काफी लॉन्ग राइड्स पे जाती हूँ, सोलो जाती हूँ, हाईवे पर सोलो जाती हूँ, मैं स्विम करती हूँ. तो ऐसा पहले ऐसा भी था कि किसी भी एक चीज के लिए मुझे ऐसा नहीं कि मैं हद से जुनून से ज्यादा उसके लिए चली जाऊं. मुझे जब जो अच्छा लगता है, मतलब मेरे लिए मेरा पैशन एक बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे कंपलसरी वो करना ही है. मतलब आपके लिए जुनून हो गया, आपकी रेसेस जुनून हो गई. इफ यू लाइक टू रन, जस्ट गो फॉर द रन. यू डोंट नीड टू रजिस्टर एनी मैराथन. वॉट एवर यू लाइक. अगर आपको डांस पसंद है, काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अभी तुम पहले जितना रेस नहीं करती हो, अभी तुम यहाँ नहीं हो. तो मैं यही कहूंगी कि मुझे जो पसंद है, मैं किसी और के लिए नहीं करती हूँ. मुझे जो पसंद है, वॉट एवर आई लाइक एंड वॉट एवर टाइम आई हैव एंड वॉट एवर मनी टाइम परमिट्स यू, डू दैट ओनली. You don't have to compare with any others person कि यार वो रेस में जा रहा है, मैं ये रेस में जाऊं. whatever time and money permits you, that's it. and for me and Pradeep, जितना भी हम लोग के लिए जैसा भी साल का एक रेस होता है, तो we'll do that only. मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर साल रिपीटेटिव रेस करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके कंपेयर में I can do this thing. You can save your money. मैं वो एक ऐसा नहीं बोलूंगी कि हर एक स्पोर्ट्स का अपना एक मजा होता है. वो स्विम हुआ, रन हुआ, डांस हुआ, जुम्बा हुआ, एरोबिक्स हुआ. नॉट एनी फिटनेस फॉर्म इज रॉन्ग, बट आपको जो पसंद है आप वो सिलेक्ट करें, और दूसरों के लिए नहीं कि यार वो उधर जा रहा है मैं भी उधर जाऊं. मुझे जो पसंद आता है, जितना मेरे पास टाइम है, मैं वो प्रेफर करती हूँ. नॉट लाइक दैट कि मुझे हर रेस साइन अप करना है, हर रेस के लिए मुझे मेरा फैमिली को प्रायोरिटीज नहीं देना है. ऐसा मेरा सोचना थोड़ा है कि जो मुझे जब जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ. नॉट फॉर द पीपल. मुझे एक्सप्लोर इंडिया करना है, मुझे बाइक पर पूरा इंडिया जाना है. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, मी एंड प्रदीप, फॉर बाइक राइड, एक्सप्लोर. नाउ इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन वी आर एट होम last since 3 months, but we are supposed to go for a Ladakh marathon. Wow. 89 किलोमीटर लद्दाख मैराथन. तो अभी ये सब सिचुएशन नहीं है कि हम लोग कब नेक्स्ट ईयर तक जा सकेंगे. तब तक खुद को फिट रहिए और मस्त रहिए. ये हुई ना बात, फिट रहिए और मस्त रहिए. एंड एवरी डे इज गुड when you go for run, ride or your me time. तो मैम एक बात बताओ, अभी जैसे आप बोल रहे हो कि लॉकडाउन टाइम में अपने आप को आपने रिफ्रेन कर लिया, तो आप घर पे करते हो क्या ये सब एक्टिविटीज? क्या करते हो घर पे? हाँ, घर पे मेरे और प्रदीप दोनों के बीच में ट्रेनर है, तो अच्छा. हम लोग घर पे दोनों ट्रेनर पे राइड करते हैं. मुझे समर में मुझे इतना हीट था, तो आई जस्ट डू सम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, सम योगा. और इतना भी नहीं कि अगर इतना ह्यूमिड है, जितना मेरे से होगा और जैसा भी होगा मैं वैसा ही करती हूँ. ऐसा आई एम नॉट प्रेशर माई सेल्फ सो मच फॉर दिस कि ऐसा ऐसा, मतलब रोज वो डेडिकेशन, वो जुनून नहीं बन जाना चाहिए. वो आपका पैशन है, उसी उतना ही होना चाहिए. आपका फैमिलीज है, मेरे साथ मेरे मदर इन लॉज है, हस्बैंड है, तो मैं मेरा दूसरा प्रायोरिटीज पहले पूरा करती हूँ, उसके बाद मेरा. तो आप ऑनलाइन कुछ नहीं सिखा रहे? जैसे मैं तो मेरा एजुकेशन सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है. आई एम एसोसिएट विद द 3. Currently I'm associate with the 3 school for a Zumba, and I'm taking 1200 student online every day from a online education, and every day Zumba videos hota hai. I do my work and household co work. तो मतलब कहीं भी हार नहीं माननी है ना, ऑनलाइन चालू. ऑनलाइन चालू है, मतलब घर वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फॉर होम दोनों चालू है. दोनों चालू है. उस दोनों चीजों में आप बहुत अच्छे हैं, राइट? दैट्स व्हाट प्रदीप जी ने भी कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपको. योर फ्रेंड्स हैव आल्सो अप्रिशिएटेड, एंड इट्स लाइक बोलते ना, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो हमारा शो है उसमें आप कितना बोलते ना सटीक फिट होते हैं. आई एम श्योर मेरे ऑडियंस जितने भी यहाँ पर हमको देख रहे हैं या सुनेंगे, दे कुड रिलेट कि दीपा ने जैसी अपनी एक जर्नी
फॉलो करी है, जिससे इंस्पिरेशन हम सबको मिलती है, वो कोई भूलना नहीं चाहिए। और मैं दीपा जी आपको बताना चाहूंगी, मेरे जो नेक्स्ट एपिसोड है विच इज 9th अगस्त को, वी आर हैविंग अ पर्सन, मतलब आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे, अ पर्सन नेम्ड एज टिंकेश कौशिक. He is having both the legs amputed, one arm amputed, and he is running with jacks. He's learning yoga, he's doing fitness, and he's just 29 years old. Oh, आप सोचिए. that's amazing. तो मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगी कि नेक्स्ट संडे के लिए 6 PM के अपने स्लॉट्स बुक कर दीजिए. वी विल इंट्रोड्यूस यू टू अ एक्सीलेंट पर्सन. और दीपा जी आप भी हमारे साथ जुड़िएगा कि Yeah, sure, आपको definitely. प्लीज देखिएगा. और मैं चाहती हूँ हमारे शो के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने मैं जैसे स्टार्टिंग में कहा, यू दिनेश एंड रमाकांत, ये जो चीज है जिसे सुनना ही है अभी लॉकडाउन पीरियड में, ये काफी लोगों को कितनी एनर्जी दे सकता है कि वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक चीज अडॉप्ट कर सके. वो फिटनेस रिलेटेड है तो वो अपनी लाइफ में जरूर इसे अडॉप्ट करेंगे थ्रू योर दिस अगेंस्ट ऑड सीरीज. So I'm really thankful to you, Ramakant and Megha, for considering me as in this show. You are मतलब बोलते ना एकदम सही पर्सन है हमारे इस एपिसोड के लिए, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बिकॉज जो I hope आपने we किया can है. inspire some people. Yes, And आप. I hope, yes, प्लीज बोलिए. and this is my contribute towards society कि मैंने अगर जितना भी किया है मैं उसमें से थोड़ा भी किसी के लाइफ में कुछ भी contribution दे सकती हूँ in this medium. So then that's great for me. That's so nice of you. That's so nice of you, Deepa. And मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी मेरे ऑडियंस को कि प्लीज हमारे साथ बने रहिए. हमारे फ्राइडे या सैटरडे के एपिसोड्स रहेंगे. कहिए सुनिए. All against all odds will be there every Sunday 6 PM. I would like you to be there with us. Thank you. Thank you. Thank Namaste. you, everybody. Thank you so much. Thank you.